and that too that is a binary code. Okay, so a single error correcting code and binary codes are known as Hamming codes. Okay, that means single error correcting code should be there, word should be there for a Hamming code. And if we place t is equals to 1, now because we know that this was t and it was a single error correcting code, so now t is equals to 1. So if I place t is equals to 1 here, the equation will become 2 to the power of m is equals to 1 plus n. That means 2 is to the power of this. Okay, so if we solve it, I will be getting that means n is equals to 2 to the power of that is 2 to the power of m minus 1. Okay, this is 2 to the power of m minus 1. K is equals to 2 to the power of m. This is n is equals to what you can write, n is equals to k plus m. You can write n is equals to k plus m. So I can say that k is equals to 2 to the power of m minus 1 minus m. Okay, n is equals to 2 to the power of m and so on. And d minimum, we have stated that d minimum for any code should be less than or equal to n minus k plus 1. Okay, so mostly this is m. This should be less than or equal to m plus 1. But mostly what we do is we use d minimum is equals to m. Okay, so we will be using this notation, and what we will be using is n comma k notation. We will be using n comma k. This is n comma k comma m. This is n, k and m, but we will be using this n comma k. Okay, so in the last lecture we discussed something like this. Just for your visualization, what I have done is I have stated this figure in which you can see that x can be any valid code, and there will be a sphere with a radius of s or t. If I am making a code for only detection, then this d minimum should be greater than s. Then d minimum is greater than s, then because we are dealing with bits or digits, we will be using integers. So if I am saying that d minimum should be greater than s, I can write it as d minimum should be greater than s plus 1. इस स्फीयर के बाहर होना चाहिए, स्फीयर के अंदर हुआ तो वो सारे के सारे डॉट्स, जितने भी ये सारे डॉट्स हैं, वो सारे के सारे मैप होंगे x की तरफ. ठीक है, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. जस्ट फॉर योर विजुअलाइजेशन आई हैव यूज्ड अनदर फिगर. सिमिलरली जब हम दो स्फीयर्स की बात करते हैं और हम बात करते हैं करेक्शंस की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्शंस, कि हाउ मेनी बिट्स कैन बी करेक्टेड और हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी करेक्टेड, हम दो स्फीयर्स की बात कर रहे हैं. सबका स्फीयर की रेडियस अपना t है. एवरी स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ t, राइट. सो कोई भी चीज इसके स्फीयर में लाई करेगा देन इट विल बी मैप टू y. कोई भी पॉइंट इसके स्फीयर में लाई करेगा देन इट विल बी मैप टू x. then it will map to x. But इन दोनों के बीच में यदि ओवरलैपिंग हुई, सपोज दिस स्फीयर इज समथिंग लाइक दिस, then what will happen, any bit lying at this position can be claimed as a y or can be claimed as a x. Okay, so that means there must be a separation between these two spheres. So हमने क्या किया, t इधर से 2t, so that means d minimum should be greater than t. D minimum should be greater than 2t. So that means I can write d minimum can be greater than or equal लगाने के लिए हमने क्या किया, 2t plus 1 इंटीजर एक ऐड कर दिया. यानी इसके बीच में एक बिट का सेपरेशन तो होना ही चाहिए, या एक डिजिट का सेपरेशन होना ही चाहिए. Okay, so this was the last lecture and the revision of last lecture. Now we can take another example. Now in this numerical it can be seen that d minimum is equals to 4. d minimum is equals to 4. Okay, what does that mean? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि what is the error detection and correction capability. So error correction capability कितनी हो जाएगी, s plus 1 is equals to 4, that means s is equals to 3, and 2t plus 1 is equals to 4, that means t is equals to 1. Okay, I cannot write 1.5
t is equals to 1, यानी हम लोगों ने भले ही एक्स्ट्रा बिट्स यूज करी बट उसने हमको एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया. t is equals to 1 can be achieved by d minimum is equals to 3, right? t is equals to 1 तो हमको d minimum is equals to 3 से भी अचीव हो जाता है. तो what advantage it is giving? Okay, so that is why what we do is we use odd minimum distances, यानी d minimum जो होगा जनरल कोड में, प्रैक्टिकल कोड्स में, that will be a odd quantity, because even quantity यूज करोगे तो it will be a wastage of resources, क्योंकि क्वालिटी जो इसकी कैपेबिलिटी थी d is equals to 1, t is equals to 1, वो तो इससे भी मिल जा रही थी, right? So every time when we construct a code, we place d minimum to be a odd. That means separation between n and k will be a odd quantity. Okay, so this chart describes different types of code. Okay, when t is equals to 1, the minimum separation will be equal to 3, 2t plus 1. Okay, the codes can be 1 comma 4, 2 comma 5, 6 comma 3, 7 comma 4, and so on. Similarly, when t is equals to 2, minimum separation code will be 5 and 4 comma 10, 8 comma 15, and multiple codes are there. Okay, and efficiency, how to write the efficiency? It will be 1 by 3, 1 by 4, 2 by 5, n comma k. Efficiency of code rate is given by k by n. Okay, so these are the summation of all the formulas that we will be using it, or we have stated it. So next topic will be your linear block codes. Okay, so we have discussed different thing. Block, if I am saying block, that means I will be dividing my stream into blocks of data, and each block will be of k digits or k bits. Okay, and then this chunk of data that is of k bits will be encoded into n code word. ठीक है, हर बार जब k bit आएगा, that means whenever I am saying that for 101, the code word is 1010111. तो जहां पर भी ये स्ट्रीम में डेटा आएगा 1010, it will always be coded into this. ये यहाँ पे पास्ट पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता. दैट मीन्स एवरी टाइम वी एनकाउंटर द सेम डेटा, सेम chunk of k bits, I will be coding it with the same code word. Okay, so block means this, we are dividing the stream into k bit blocks. When we are talking about linear, that means जो relationship between the codes होगा, that is linear, and I can say the parity bits or the check bits, जो extra bits हम add करने वाले हैं, the check bits will be a linear combination of data bits. लीनियर कॉम्बिनेशन होगा डेटा बिट्स का. अब लीनियर कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज एडिशन x plus y. Okay, but in error coding or in communication we deal with mod 2 addition. So I have told you in the last lecture also, we will always be taking mod 2 addition, that is XORing. Okay, so let's start with it. A linear block code. What are the three qualities or three minimum properties that a linear code should follow? That is not here. What are the three properties? First is all zero code must be there in the code word. All zero code word must be there in the code. Code is collection of all the code words that are being used. So एक 0000 मतलब कोई भी जितने भी bits का use कर रहे हैं, all zero code word must be there in the code. Secondary, if X is a code and Y is a suppose code and Z is a code, okay, then linear combination of two codes must result in the third code. ये भी एक property है. Okay, X plus Y should result in a Z if X, Y, Z are the code words of a particular code.
Another quality is, this is just a extension, that x should be a inverse of itself. That means x XOR x should always result in a code that is 0 0 0 0 0. Okay, so basically दो properties है. First is all zero code word must be there, and addition of two codes must result in another code word. Okay, so दो ये property जो भी fulfill करेगा, that will be known as a linear block codes. So let's start with it. We are taking a n comma k block code word in which k bits data is available, k bits data is available, and n bits code word will be generated. N bit code word will be generated. Okay, so in general case, the C are formed by the linear combination of k data digits. मतलब जो code word generate करेंगे, that will be the linear combination of the data bits that are available. Okay, so if we are talking about the systematic code, when we are talking about the systematic code, we know that in this data and check bits जो extra redundant bits add कर रहे हैं, दोनों अलग अलग available होंगे. That means data followed by check bits और check bits followed by a data. Mostly what we do is we first place the data followed by a check bits. अभी example से जब समझोगे, it may be more clear to it. That means if n bits are there, if n bit code word is to be generated, first k bits will be data, then from k plus 1 to n will be your check bits. Okay, it will be called as a systematic code. Systematic code का मतलब ये है कि दोनों interleaved नहीं है, पहले data आएगा फिर check bit या data. ठीक, so I can say that k data bits followed by n minus k parity check bits. Okay, so what I can, if I am talking about the systematic code, that means my first code bit will be d1, second code bit will be d2, third code bit will be d3, and so on, and kth code bit will be dk. Then k plus 1 bit, that is the next bit after the data, the first check bit, this will be my first check bit, that will be generated by the linear combination of all the data bits. These are the linear combination of all the data bits multiplied with the weights. These are the weights. Weights का मतलब क्या है? अब बाइनरी की बात कर रहे हैं, यानी जो H11 होगा या Hij कह लेते हैं. If I am talking about Hij, it will be either 1 or 0 based on the existence of that code bit in the code word. Okay. For example, I am saying that if my C4, if I am taking a code word C3, 6,3, that means 3 number of bits are there in the data word and 6 will be generated. So C1, C2, C3, ये हो गए तुम्हारे D1, D2 and D3, right? जो C4 होगा वो कुछ भी हो सकता है. Suppose I am writing it will be D1 plus D3. C5 कुछ और लिख देते हैं, that is D1 plus D2. Similarly C6 को हम लिख देते हैं D2 plus D3. Okay, so जो बचे हुए check bits हैं, that will be the linear combination of all the data bits. तो इसमें H11 1 हो गया, H12 0 हो गया, H13 will be 1. तो इस तरीके से ये कोड वर्ड जनरेट किया गया. Now if there is a sequence of linear equations available, we can represent them using a matrix. We can use them matrix. So what I can write is, I can write C is equals to dg. Okay, where G is the generator matrix. This is very important for you. This is a generator matrix. We have used this linear equation to form this. Simple. First जो k bits होंगी, the first k bits, these k bits will be simply d1, d2, d3, d3 messages. जो data था वो होगा, followed by linear combination of that data bits to generate check bits. ठीक है, and when we combine them, this is a generator matrix. So I can say that first k cross k matrix will be an identity matrix, and followed by k cross m check matrix. Okay, this is generally represented by P. Okay, so I can say G is
is equals to I followed by a P. G is equals to I followed by a P. Okay, let's take an example and understand how a generator matrix is formed and how a code word will be generated. कैसे हमको एक लीनियर कोड वर्ड जनरेट करना है. अच्छा, पीछे चलते हैं. H11 सिंपली है, जैसे सपोज यहीं पे देख लो, इफ सपोज आई हैव टू दिस, यहाँ पे H11 की वैल्यू कितनी होगी, D1 एग्जिस्ट करता है, दैट मींस दिस विल बी 1. H12 की वैल्यू 0. सिमिलरली यहाँ पे H13 होगा लास्ट, सो H13 विल बी इक्वल टू 1. Similarly, H21 will be equal to 1, H22 will be equal to 1, H31, this will be, sorry, H23 will be equal to 0. यहाँ से देखो D2 और D3 है, that means this will be 0, this will be 1, this will be 1. Is it clear, Shivam? ओके, सो दिस इज जस्ट अ वेट कि कौन से बिट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, कौन से नहीं कंबाइन कर रहे हैं. दिस न्यू इंटरफेस डजंट शो मैसेजेस. ओके, सो दैट वी गॉट टू नो व्हेन वी राइट C4 इक्वेशन, बट लेट मी okay, that we got to know when we write C4 equation, but how we will write the C4 equation? You don't have to write the C4 equation. Okay, आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि this is the generator matrix और this is the relationship between the check bits and the data bits. क्वेश्चन में दिया रहेगा कि check bit और data bit कैसे होगा, कहाँ मिलेगी. ओके, कोड बिट्स एक जनरेटेड है. इफ आप न्यूमेरिकल में देखते हो सो आपको अवेलेबल होगा डेटा में. जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट. सपोज इन दिस न्यूमेरिकल इट इज गिवन दैट इट इज अ सिस्टमैटिक लीनियर बिट कोड वर्ड. सिस्टमैटिक है और लीनियर है और उसमें दिया हुआ है कि जो C4, C5, C6 है दैट आर रिलेटेड टू द डेटा बिट्स समथिंग लाइक दिस. ओके, सो it is clearly understood that C1 will be equal to D1, C2 will be equal to D2, C3 will be equal to D3. ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, but we know that because it is a systematic linear code, ये होगा. So what we have to first do is write a generator matrix followed by possible code words and then draw hardware encoder. 3 चीजें पूछी गई है. तो start करते हैं with the P, because if you can remember from the previous slide, G is equals to I followed by P. G is equals to I followed by a P. So let's start. P कैसे बनाया हमने? P is simply, पीछे से चेक करिए. If I have to make a P here, the P matrix will be just writing it 1 0 1. H11 is 1, H12 is 0, H13 is 1. Similarly here 0 1 1, here 1 1 0. सही है? कोई कंफ्यूजन है? if suppose I have to multiply this, ये हो गया आपका P, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद आर डेटा, सॉरी डेटा इनटू P. सपोज हमने ये किया, सो डेटा वाज एनीथिंग D1 D2 D3 followed by this 1 0 1 0 1 1 1 1 0. Okay, what I will be getting is D1 plus D3, next will be D2 plus D3, next will be D1 plus D2. ठीक है, सिंपली वही जो बनाया था वही मिल गया हमको वापस. ओके, सो फ्रॉम D into P I will be getting my check bits. It is generally known as CP. So सबसे पहले हमने P बना लिया. ओके, what will be the order of this P? ऑर्डर क्या होगा P का? K into n minus K. ओके,
k into n minus k, यहाँ पे n minus k भी 3 है और k भी 3 था. Next we have to add our identity matrix of order k cross k. हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ दी k क्रॉस k की. ओके, एंड अब पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो कि हम लोग यहाँ से बनाई थी, चेक मैट्रिक्स बनाई थी जो वो यहाँ बना जोड़ दी. सो नाउ आई एम गेटिंग माय जनरेटर मैट्रिक्स. सिंपली जनरेटर मैट्रिक्स मिल गई हमको. नेक्स्ट, जनरेटर मैट्रिक्स मिल जाने के बाद नाउ वी नो दैट कोड वर्ड इज d into g, डेटा into जनरेटर मैट्रिक्स. अब k is equals to 3, so 8 possible combinations are there. That means 0 0 0 to 1 1 1. Total 8 combinations are there. The first code word will be, यदि हम 0 0 0 को multiply करें with this generator matrix, what I will be getting is 0 0 0 0 0 0 0. Next, if I multiply with 0 0 1, what I will be getting is a 0. What will be my code word? Systematic है, that means 0 0 1 तो हो गई. Message bit followed by, now parity क्या देता है हमको? 0 0 1 है, that means this will be if I am multiplying this will I have to multiply this with 0 0 0 1 0 0 0 1. So I am getting a 1 here, and a 0. ठीक है. सो ऐसे करके आई कैन मेक दिस थिंग. सी दिस 0 0 0 के लिए दिस, 0 0 1 के लिए like this. Then coming to 0 1 0 0 1 0, that means we have to check this. So 0 1 0 will be Sir? 0 0 1. See this. Yes. Sir, not able to understand this. Hello. Sir, not able to understand this thing. How you 0 0 0 to 0 0 0 0 0. अच्छा, ये कैसे मिला? जनरेटर मैट्रिक्स कैसे मिली? ये क्लियर हो गया? यस सर, जनरेटर मैट्रिक्स क्लियर हो गया. ठीक. अब कोड वर्ड क्या होता है? C is equals to D into G. पीछे चलते हैं. ये देखो कोड वर्ड हमने क्या बनाया था. देखो C is equals to D into G, जिसमें D क्या है? डेटा बिट, एंड G क्या है? जनरेटर मैट्रिक्स. ठीक है. ओके, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू जनरेट, एक सेकेंड इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूं जिससे पेज खाली हो जाए. लेट्स टेक दिस अगेन. ओके, ये बना लिया हमने, देन G बना लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द पॉसिबल कोड वर्ड्स फॉर ऑल द डेटा बिट्स. ठीक है, हमको पता है कि हमारे पास 3 बिट्स हैं, तो दैट मींस इट विल बी फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1. और दूसरी चीज ये पता है कि C जो कोड वर्ड होगा दैट इज सिंपली D into G. नेक्स्ट, D is suppose 0 0 0. Okay, then I have to multiply it with my G matrix. Okay, so हम G को मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले देखो 0 0 0 into this, it will be a 0 into this, 0 into this, again 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. So I will be getting a complete 0. Okay, अब ले लो डेटा 0 0 1 into G. अब क्या होगा? जब 0 से 1 मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी अ 0. इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 into 0 plus 0 into 1 0 plus 1 into 0 0. Then 0 into 0 0 0 into 0 0 1 into 1 that. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. यहां से हमको ये वाली बिट मिल जाएगी, इससे फिर मल्टीप्लाई किया ये मिल जाएगी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सो 0 into 1 0 into 1 1 into 0 0. ओके सर. ठीक, अब और कोई ले लेते हैं. 1 1 0 ले लो, 1 1 0 ले लो. 6 1 1 0 के केस में क्या होगा? गॉट इट सर, गॉट इट. ठीक, तो इसको जब हमने, हाँ सर अगर 2 बार 1 ऐड हो रहे हैं तो वो 0 1 + 1 आ जाएगा. तो
0 देख, इसीलिए तुमने लिया एग्जांपल। और देखो अच्छा जब ओके 1 सर, समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, हाँ। जैसे 1 1 0 लिया तो ये 1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके। इग्नोरिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पे मॉड ले रहे हैं, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर वी आर नॉट एडिंग, वी आर एक्सोरिंग इट। ठीक, सो 1 + 1 will result in a 0, 0 + 0 will result in a 0। जब दो alternate होंगे then it will be a 1 1। ये याद रखना है अपने को। और उसका पूछा गया था एनकोडर सर्किट, तो सिंपल एनकोडर सर्किट है। हार्दिक माइक ऑफ कर दे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ हार्दिक। यस, सेकेंड चीज पूछा गया है एनकोडर सर्किटरी। सो एनकोडर सर्किटरी में क्या है, हम लोग टोटल 3 बिट का था तो 3 बिट का चंक उठा लिए, 3 बिट का एक डेटा उठा लिए, एंड देन C1 C2 C3 तो सिंपली है, C1 इज D1, C2 इज D2, C3 इज D3, ये जोड़ दिया। नेक्स्ट C4 क्या है, D1 और D3 का एक्सॉर, सो D1 + D3 C4 में लगा दिया। सिमिलरली C5 क्या था, D2 और D3 का, एंड C6 क्या था, D1 और D2 का। बस दिस इज योर हार्डवेयर सर्किटरी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। जो भी सर्किट में आप इक्वेशन दी हुई होगी उसका आपको सर्किट बनाना है। सपोज हमने एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एक सिंपल सा, कोई ने किसी ने कह दिया फॉर एग्जांपल कि आवर मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस 0 0 सॉरी 1 0 0 0 0 1 0 and then I will write this will be 0 0 1, okay, and somewhat here कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, that means कुछ भी 1 0 0 okay, then 1 1 0, then 0 1 1, then 1 0 1, okay, suppose हमने ये लिख दिया, right। एक सेकेंड, इसको 0 कर दो, 0 कर दो, इसको 1 कर दो, this is a code, right। So this is your I and this is your I। what is going on now, एक सेकेंड, हाँ, this is your I and this is your P। कोड बिट बताओगे क्या है, what happened, हाँ चलो एक सेकेंड, राइट, ये क्या हो गया, समथिंग इज, हाँ तो इसका बताओगे कोड बिट क्या है। दिस पेन इज, पता नहीं कुछ, okay, so if I have to write this code word I will be writing 7,4। 7 बिट जनरेट कर रहा है, if you can see identity matrix is 4 × 4, identity matrix is 4 × 4 and CP is 3 × 3। सॉरी इधर कुछ गलती हो रही है क्या, सॉरी, दिस इज 0 0 0 1। अब कुछ इस तरह ले लो, एग्जाम्पल लेना ही, एक सेकेंड, कंफ्यूजन होगा। कोई भी एक डेटा उठा लेते हैं हम, ओके, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स बना दी, मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनाई 1 0 0 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। This is your identity matrix, then followed by anything, this is 0, then 0 1 1 0 0 1 0 1। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हमने ले लिया, ठीक। So if this is given, a matrix of like this is given, okay, 4 × 7 is given, so I know that my code word will be 7, 4। that means my n is equals to 7 and my k is equals to 4, ठीक। b minimum कितना है, 3 है,
सेपरेशन इन दोनों के बीच में 3 का है, दैट मीन्स हम एक बिट को सही कर सकते हैं एंड 2 बिट को डिटेक्ट कर सकते हैं गलती को, राइट। अब इससे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, दैट मीन्स C1 C2 C3 C4, दैट इज D1 D2 D3 D4। अब ये दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि C4 जो है, सॉरी C5 जो है, दैट विल बी नथिंग बट D1 XORed with D2, ठीक। C6 will be D2 XORed with D3, okay, and C7 will be D2 XORed with D4, okay। So if generator matrix दी है, then also I can frame my equations, और जब इक्वेशंस बन जाएगी, सिंपली हमको क्या करना होगा, 4 बिट का एक पैकेट लिया, दैट इज सिंपली D4 D3 D2 D1, ओके, एंड देन उन दोनों को कंबाइन कर दिया जिससे कि हार्डवेयर बन जाएगा, दैट मीन्स ये C1 निकल जाएगा, C2 C3 C4, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एक्सॉर्ट देम टू फॉर्म माय C5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके, बहुत ही इजी। एक जनरेटर मैट्रिक्स दिया होगा और बाकी चीज फाइंड आउट करना होगा, या इक्वेशंस दी होगी, जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड आउट करके बाकी चीजें स्टार्ट करना होगा। आई विल बी यूजिंग सम मोर न्यूमेरिकल्स इन माय नेक्स्ट क्लास और इन दिस क्लास आल्सो, देखते हैं क्या समय मिलता है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिकोडिंग। अब हमने कोड बनाया है, व्हेन वी हैव फॉर्म्ड अ कोड, इट मस्ट गिव अस करेक्शन एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटी। तो डिकोडिंग में पता चलना चाहिए कि if there is a error at the code receiving side, okay, then I should detect at least one or more than one bit if it is erroneous, okay। So हम यहाँ पे simple सा logic लगाते हैं, because we are using a mod addition, so mod addition में यदि x और x को add किया जाए, so result will always be a 0, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को तुमको पता ही है कि अ नंबर एक्सॉर्ड विद इटसेल्फ इज अ 0। सो हमने कॉन्सेप्ट क्या किया कि दिस CP, दैट इज द चेक बिट्स को, इफ यदि चेक बिट से ही हम एक्सॉर करें, इफ आई एम एक्सॉरिंग अ चेक बिट विद इटसेल्फ, चेक बिट कैसे बनती है, D into parity matrix, D into parity matrix, D into I is मैसेज बिट, D into parity matrix is your check bits। यदि इन दोनों को एक्सॉर किया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, 0। D into parity matrix is CP, ये भी CP है, और CP को एक्सॉर किया जाए CP के संग तो बन जाएगा 0। इसको थोड़ा सा और अलग ढंग से लिखा जाए, सो आई कैन से दैट D CP, जस्ट कि एक फॉर्मूला फ्रेम होगा, D into CP multiplied with P into I should be giving us a 0। सिर्फ हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, D into P plus CP into I, that is DP plus CP is equals to 0, right। अब ये D और CP है क्या चीज, D followed by CP होता क्या है, D followed by CP होता क्या है, D followed by CP is the check bits, D is the data bits। क्या होता है D followed by CP, this is your code word ना, हाँ code word, okay। So what I can say is C, if I am writing C into PI must be equal to 0, okay। And what we call this matrix as, इसको हम कह देंगे H of H transpose, that means C H transpose is equals to 0, where H is equals to P transpose I, where H is equals to P transpose I, and H is known as parity check matrix. It is known as parity check matrix। अब ये सोचोगे कि parity check matrix हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अभी आगे की चीज है। So that means if I multiply the code word with parity check matrix transpose, I should be getting a 0. If I am not getting a 0,
दैट मीन्स देयर इज सम एरर, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि यही चीज हम लोग ने निकाला, Cp प्लस Cp इज इक्वल टू 0 होता है, ये श्योर है हमको। देन हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, DCpPi, ओके। देन हमने एक H मैट्रिक्स बनाई है, दैट इज P ट्रांसपोज ऑफ I, ओके। I ट्रांसपोज इज I, so I am writing PTI, okay. So this is parity check matrix, right? तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये चीजें होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन फॉर लीनियर कोड्स कि ऐसा होगा ही होगा। नेक्स्ट मूविंग टू कि इफ दिस इज ट्रू और हमने C ट्रांसमिट किया था और रिसीव किया R, और बीच चैनल में देयर आर एरर्स अवेलेबल, if error is available in the channel and that is also additive, then I will be saying that R is equals to C plus E. I can say that, okay. And if there is no error, R into HT should also follow this equation. यदि कोई एरर नहीं है तो ये होना चाहिए, बिकॉज अभी हमने फ्रेम किया कि कोड वर्ड इनटू पैरिटी चेक मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 0. सो इफ दिस हैपेंस आई विल बी सेइंग कि दैट करेक्ट कोड इज रिसीव्ड. Agreeing to this, a correct code word is being received. But if it doesn't happen, that means the relationship is non-zero. Then what it means? There is some error, and that is known as syndrome. Okay, so we have to find the syndrome. So syndrome is S is equals to R into HT. That is R क्या है? C XORed with E, मतलब C plus E into HT. कोड वर्ड जो हमने भेजा उसमें एरर ऐड करके इंटू HT, रिसीव तो यही किया था ना हमने, R is equals to C plus E. Now C into HT plus E into HT. C into HT कितना होता है? C into HT पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था 0. सो दैट मीन्स S इज नथिंग बट E into HT. HT हमको पता है, ठीक है. सो हम एरर की इंफॉर्मेशन यूजर को बता सकते हैं कि वेयर इज द एरोनियस बिट्स, ठीक है. ये हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया कि सिंड्रोम ये होता है. चलो ये तो क्लियर हो गया कि S is equals to E into HT. अब स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल. इन द प्रीवियस मैट्रिक्स, जो प्रीवियस हमने न्यूमेरिकल लिया था, सपोज R is equals to 1 0 0 0 1 1 is received. This is received. Okay, we have to find out what is the correct code word. I am coming to that. S will be given. Let's start with this numerical. जो पुराना वाला न्यूमेरिकल था उसमें कंटिन्यूएशन में वी हैव एडेड दैट R is equals to this is being received. यूजर से बोला गया है कि आपसे न्यूमेरिकल से बोला गया है कि टू फाइंड द डेटा बिट्स, इट इज अ सिमेट्रिक कोड. अब इफ कंडीशन R into HT is equals to 0 मैच कर जाती है, इफ ये पहले ही मैच कर जाती है, दैट मीन्स R में कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन द R. सो आई विल बी सेइंग कि दिस इज माय डेटा बिट्स. सब अग्री करते हैं इस पे? यदि R into HT 0 है तो पहले 3 बिट्स जो होंगी दैट विल बी आवर डेटा बिट्स. सिस्टमैटिक है ना? अग्री करते हैं? यस. इफ नहीं है तब हम सिंड्रोम निकालेंगे और देखेंगे क्या गलतियां हैं क्या नहीं है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द G मैट्रिक्स दैट वाज गिवन. सो G मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूं वापस. सो G मैट्रिक्स वाज 1 0 0 0 1 0 then 0 0 1 followed by 1 0 1 0 1 1 1 1 0. दिस वाज गिवन. पिछले वाले स्लाइड्स को देख सकते हो आप, ये था. सो दिस वाज इंपॉर्टेंस P, ये था हमारा, ठीक.
सो H मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? H मैट्रिक्स इज P ट्रांसपोज I. H मैट्रिक्स इज P ट्रांसपोज I. सो H मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी? H मैट्रिक्स बन गई हमारी 1 0, यहां से देखते हैं H मैट्रिक्स, पहले यहां से देखेंगे तो ये बन गई 1 0 1, देन 0 1 1, देन 1 1 0 1 1 0. ट्रांसपोज किया है हमने 1 0 1 रो 0 1 1 1 1 0, फॉलोड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. H मैट्रिक्स बन गई अपनी. एक सेकेंड. So now we have framed a H matrix also. Okay, so अब H मैट्रिक्स बन गई. अब H ट्रांसपोज तो हम कर ही सकते हैं आराम से. So what will be a H transpose? H transpose will be, उस स्लाइड में नहीं था. H transpose will be, I am just transposing it, that is 1 0 1 0 1 1 1 1 0, then 1 0 0 0 1 0 and then 0 0 1. ये हो गया हमारा H transpose. ठीक. Next what we have to do, syndrome will be equal to R into HT. If 0 आ गया syndrome, that means कोई भी error bit नहीं है. So बस हमको क्या करना है, हमको R को मल्टीप्लाई कर देना है. 1 0 0 0 1 1 multiplied with H of T, H transpose. ठीक है, H of T नहीं, H transpose. So if I multiply this with this bit, so first bit will be 1, इधर देख ले, मल्टीप्लाई कर लो 1 एंड प्लस कुछ नहीं 1, फॉलोड बाय सेकेंड. अब इसको सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो, सो आई विल बी गेटिंग अगेन अ 1. थर्ड को फॉलो करो, सो आई विल बी गेटिंग अ 1 फ्रॉम हेयर एंड लास्ट बिट से एक और 1, सो 1 प्लस 1. ठीक है. सो माय सिंड्रोम विल बी इक्वल टू 1 1 0. यदि किसी को समझ में नहीं आया कि सिंड्रोम 1 1 0 कैसे आया, यू कैन आस्क अगेन. नेक्स्ट क्लास में हम फुल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जितने पॉसिबल हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट अभी यही है जो है. सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, you are having queries, please ask. स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ दिस न्यूमेरिकल यहां से स्टार्ट करते हैं. लेट मी चेक हो क्या मैसेजेस आए. ओके, स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. ओके, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन सेम था. अ जनरेटर मैट्रिक्स वाज गिवन, ओके, एंड यू वर टोल्ड दैट हमने ये रिसीव किया, R is equals to 1 0 0 1 हमने रिसीव किया. लेट मी टेक अ पेन. पेन का कलर चेंज कर लिया. ओके, एनीथिंग. सो सबसे पहले हमको ये दिया गया था कि हमको ये रिसीव किया है. दिस इज आवर रिसीव्ड बिट. यूजर को बोला गया है कि फाइंड आउट द डेटा बिट्स, क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड इसमें है, बाकी सब रिडंडेंट है. सो वी हैव टू फाइंड द डेटा बिट्स. यूजर को पता है कि फ्रॉम अ जी मैट्रिक्स आई कैन फ्रेम माय एच मैट्रिक्स, क्योंकि जी मैट्रिक्स से मुझे पी मिल जाएगा, दिस इज योर पी, और पी और आई कर ले जाए तो दिस इज योर एच मैट्रिक्स. ठीक है, यूजर को ये पता है. और उसको ये पता है कि वट एवर बी द डेटा, इफ आई मल्टीप्लाई इट विद द एच ट्रांसपोज, इफ आई मल्टीप्लाई इट विद एच ट्रांसपोज, आई शुड गेट अ 0. If I am not getting a 0, that means I have received the erroneous data. ये भी हमको पता है. So सबसे पहले if हम I multiply it with 0 और ये 0 कंडीशन मैच कर जाती है, तो पहली 3 बिट्स, क्योंकि हमको पता है कि सिस्टमैटिक कोड है 6,3, तो पहली 3 बिट्स हमारी डेटा हो जाएगी. राइट. इफ नहीं है, then we have to form the syndrome and then आगे का मेथड हम बताएंगे क्या होता है. ठीक. सो हम स्टार्ट किए जी मैट्रिक्स से. जी मैट्रिक्स से हमने पैरिटी मैट्रिक्स को निकाल लिया. ठीक है, पैरिटी मैट्रिक्स को निकाला, उसका ट्रांसपोज करके एच मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया, पी ट्रांसपोज एंड देन आई. राइट. जब ये कर लिया, उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद आर. आर मल्टीप्लाई किया,
R मल्टीप्लाई करने के बाद H ट्रांसपोज करने के बाद R जो मल्टीप्लाई किया, इफ वी आर गेटिंग अ जीरो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ हो चुका. एंड इफ वी आर गेटिंग नॉन जीरो नंबर दैट मीन्स देयर इज अ एरर अवेलेबल. यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आया, दैट मीन्स ये एरोनियस है. अब एरोनियस है दैट मीन्स कोई ना कोई बिट तो गलत होगी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डी मीन इज इक्वल टू 3, हम एक बिट करेक्ट कर भी सकते हैं. अग्री टू दिस? एक बिट हम करेक्ट कर सकते हैं. 3 डी मीन इज इक्वल टू 3, एक बिट करेक्ट कर सकते हैं, 2 बिट डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट अब क्या करें हम? 110 आया, 110 है, यहां से चेक करो कि H के किस रो पे ये एग्जिस्ट करता है. तो H के ये थर्ड रो पे एग्जिस्ट करता है. H ट्रांसपोज की ये थर्ड रो पे एग्जिस्ट करता है. सो आई विल जस्ट राइट 0 0 1 0 0 0. सिंपली जहां पे एग्जिस्ट करता है वहां पे 1 ले लो एंड बाकी सारे जीरोस. सो माय E will be 0 0 1 0 0 0. This is my error. This is my error. Simply जो भी सिंड्रोम आए, सिंड्रोम को चेक करो. इट मस्ट बी अवेलेबल इन वन ऑफ द रोज ऑफ द H ट्रांसपोज. जो भी आ रहा है उस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 लिख दो, बाकी सारे कंपोनेंट्स में जीरोस. ओके, बिकॉज सिंगल बिट करेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नॉट करेक्ट मोर देन 1 बिट. अग्रीइंग टू दिस? नेक्स्ट, अब नाउ हमको व्हाट वी नो इज दैट R इज इक्वल्स टू C प्लस E. ये हमको पता है, R इज इक्वल्स टू C प्लस E. दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू R प्लस E. अग्री करते हैं हम, क्योंकि एक्सॉरिंग है तो दोनों साइड से सही चलता है. If R is equals to C plus E, then C is equals to R plus E. Therefore, code word will be 1 0 0 0 1 1 XORed with error bit, that is 0 0 1 0 0 and 0. That means my code word will be 101 101 0 1 1. राइट? सो हमारा डेटा 100 है या 101 है? नाउ डेटा इज दिस. सो माय आंसर इज डेटा बिट्स इज इक्वल्स टू 101. यदि 0 आ जाता तो 100 ही हो जाता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर आया, दैट मीन्स 101. अब कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क. इसी पे न्यूमेरिकल अगले फ्राइडे को करना है. वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स यूजिंग दिस बाय सर्चिंग इन द H मैट्रिक्स. दिस वाज वेरी डिफिकल्ट. ये सबसे इजीएस्ट है नंबर स्कोर करने के लिए. ईशान, व्हाट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट इन दिस? Explain starting question. Why starting in the H matrix? Why searching in the H matrix? Divyanshu, can you turn on your mic and ask what you are asking? Sir, you search the S matrix, S vector in the H matrix. So why did you do that? Why we do that? इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. चलो, इसको यदि हमको बनाना होता, I can write like this: E1, E2, E3, E4, E5, E6 and E7. ठीक है, E6 तक है, यहाँ पे 6 बिट है ना. इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, बिकॉज वी हैव फाउंड अ एरर, राइट? और ये एरर क्यों है? ये एरर है EHT की वजह से. दिव्यांशु, यस? Yes sir. क्योंकि C इंटू HT तो खत्म हो चुका. C इंटू HT इज 0. बचा क्या? एरर. तो एरर को हमने मान लिया कि 6 बिट है, उसमें कहीं ना कहीं एरर होगी. सो आई विल बी फॉर्मिंग E इंटू HT बना लिया हमने. अच्छा, इसकी वजह से 0 आ जाएगा. फिर इक्वेशन बन गई हमारी E XOR E3 XOR E4. पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. ठीक, हाँ, गॉट इट. सो E1 XOR with E3 XOR with E4 should be equal to 1. इसके बराबर होना चाहिए. ठीक, सिमिलरली यहाँ से देखो, E2 XOR with E3 XOR with E5 should be equal to 1. ठीक, सिमिलरली लास्ट वाली देखते हैं,
E1 XOR with E2 XOR with E6 should be equal to 0. तो 3 इक्वेशन बन गई हमारी। यस सर। ठीक, अब 3 इक्वेशन में हमको ढूंढना पड़ेगा कौन से बिट में क्या है, क्या प्लेस कर दे जिससे कि ये कंडीशन मैच कर जाए। ठीक है, ओके सो वो एक प्रोसेस है, बट उसका एक शॉर्टकट हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि जब भी हम ये करते थे सो वी हैव सीन दैट इट ऑलवेज मैचेस द रो। फाइन। ठीक, ठीक है। तो ये शॉर्टकट बता दिया मैंने। आई कैन गो इन दैट मैनर आल्सो, बट फायदा नहीं है बिकॉज वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। गॉट इट। गॉट इट। हाँ, अब ईशान बताओ क्या क्या तुमको इसमें टफ लग रहा है, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट पार्ट। इसमें नंबर नहीं खींच पाओगे तो फायदा नहीं। एरर कोडिंग इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। लॉट्स ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। एक बात बताओ, ये न्यूमेरिकल आता है 5 मार्क्स का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जी दिया जाता है एंड यू हैव टू यूज सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और क्या है, एक लीनियर इक्वेशन जो लीनियर कोड का न्यूमेरिकल आता है दैट इज ऑफ 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोसेस है, करना तो पड़ेगा, एंड दैट टू इजीएस्ट है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एनी अदर क्वेरीज? कुछ हो तो पूछ लो। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में इस डायग्राम में सब कुछ समझाया गया है। डेटा वर्ड लिया गया, कोड वर्ड में सीधा कॉपी कर लो पहले 4 बिट्स में, जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग अ रिमेनिंग 3 बिट्स। ठीक है, सिमिलरली कोड वर्ड रिसीव जो करो, उसमें से हम लोगों ने सबको चेकर से पास किया। इफ यहाँ पे कोई भी जीरो, इफ S1 S2 S3 सॉरी S0 S1 S2 जीरोज हैं, तब तो सिंपल सा इसको पास कर दो, जो भी कोड वर्ड में पहली 4 बिट थी उसको सीधा पास कर दो और डेटा वर्ड पा जाओ। इफ देयर इज अ सिंड्रोम नॉन जीरो रो, दैट मीन्स हमको इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब कोड वर्ड में एरर बिट को ऐड करना पड़ेगा, एंड देन वी विल बी गेटिंग अ डेटा वर्ड। सो ये डायग्राम टू एक्सप्लेन द कंप्लीट लीनियर ब्लॉक कोड्स। हम न्यूमेरिकल्स और लेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग मोर न्यूमेरिकल्स, बट प्रोसेस विल बी सेम। हाँ, So can you send slides of these lecture? I will be sending slides when I complete my linear codes, but लेकिन जो मैंने लिखा है वो तो अवेलेबल नहीं होगा ना। These numericals, ये जो न्यूमेरिकल लिखा है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्या इसको भी ऐसे सेव कर दे? Should I save it like this only? सर ये तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना जो आपने लिखा है। हाँ। ओके, सो अभी के लिए कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क, अदरवाइज एंड किया जाए। फ्राइडे को मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। Any queries? If you can ask, otherwise So starting why I should give the editing rights for the video recordings? क्यों, मतलब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी तुमको हर्षित? So that we can download. Okay, ठीक है, चलो और कुछ? स्टार्टिंग पोर्शन आज की क्लास का वो वापस डिस्कस किया जाए हल्का सा, मतलब वो स्टार्टिंग में आपने क्या बताया था एनआरके का। अच्छा, बता देता हूँ, एक सेकेंड कीप करें। इसकी बात कर रहे हो ना, यहाँ पर ये चीज, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज। हाँ यस यस सर। ठीक, हमने ये स्टार्ट किया था कि इन द लास्ट लेक्चर हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, राइट? सो इफ तुमसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि वेदर इट इज अ परफेक्ट कोड और नॉट, तो परफेक्ट कोड के लिए यू हैव टू चेक वेदर दिस कंडीशन इज मैचिंग और नॉट। ठीक है, सो ये चीज पहली चीज है। सेकंड चीज, एक हेमिंग कोड होता है, इट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि फाइंड वेदर इट इज अ हेमिंग कोड और नॉट। तो हेमिंग कोड की 2 कंडीशन है, पहली चीज तो वो परफेक्ट कोड होगा, और दूसरी चीज वो सिंगल एरर करेक्टिंग कोड होगा। दैट मींस t इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 है, दैट मींस d min विल बी इक्वल टू 3। ये भी क्लियर है। उसको हम लोग ने थोड़ा सा और सॉल्व किया, तो बिकॉज वी आर प्लेसिंग t इज इक्वल टू 1, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 प्लस n में, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस n। ओके, सो आई कैन से, इसको मैं सही कर दूंगा, दिस विल बी 2 टू द पावर ऑफ m माइनस 1। नंबर ऑफ बिट्स जो जनरेट होगी दैट विल बी 2 टू द पावर ऑफ m माइनस 1।
Similarly, k will be equal to 2 to the power of m minus 1 minus m. m is equals to n minus k है, ठीक है, एंड सो ऑन. और d मिनिमम जो होगा दैट विल बी डिफरेंस ऑफ n माइनस k. ये हम लोगों ने एक सिंपल सा एक बना लिया है, एक एनालॉजी की ये चीजें होती है, ठीक. बस इतनी चीज थी और कुछ नहीं था इसमें. फिर मैं ये फिगर्स आपको समझाने की कोशिश की है कि वो तो आ गया. ठीक है. हाँ. ओके, सिंपल सा फॉर्मूलेज है. इन फॉर्मूलेज को आपको मैं अगले टर्म में न्यूमेरिकल्स देखता हूँ कोई मिल जाता है तो देन आई विल बी डिस्कसिंग कि कैसे दिखा जाता है, ठीक है. ओके, एनी अदर क्वेरीज और आई शुड एंड इट? चलिए एंड करते हैं सेशन.